Jai Hind everyone. Myself is Anuj Kumar. I am the assistant professor in computer science engineering department. Today we are here to find out the concept of the OOPS principle in the Java. In the last lecture we have to be discussed what is a class, what are the objects and methods. We have the now in the Java we have the main two concept. One is the code reusability and second one is the security. How we have to be achieve the code reusability and the security in the Java. So today we have to be discuss basic the 2 points. One is how we have to be achieve the code reusability and how we have to be achieve the security. To achieve these two concepts we have some points. One is the inheritance, that is has the two type. One is known as is a relationship, second one is known as a has a relationship. Second one is known as the polymorphism, and polymorphism is again two types. How we can be achieve the polymorphism? One is by using the method overloading and one is using the method overriding. If we have to be talk about these two, inheritance and the polymorphism. Inheritance means is a relationship and a has a relationship, and polymorphism means we have to be achieve it by method overloading, and the method overriding means we have to be repeat the code again and again. So these two is shown in the code reusability, or we can say that if we have to be achieve the code reusability, so we have to be use the inheritance and the polymorphism. Next one, there are some points. One is abstraction, data hiding, encapsulation and tightly coupled classes. If we have to be combined all these, so all these are used for the security purpose. So for in OOPS principle, if we have to be achieve the code reusability, we use the inheritance or we use the polymorphisms, and if we have to be achieve the security, so we have to be use the abstraction, data hiding, encapsulation and tightly coupled classes. So we have to be covered here one by one. Firstly, we have to be covered the abstraction, data hiding, encapsulation, then we have to be achieve the polymorphism and the inheritance. Okay. Now we talk about the abstraction. Means abstract. What is abstract? Means it will be hide something. And what is it will be hide? It is hiding the internal details and just highlight the main services that we are the offering. Means if we have to be used any classes, though that can be hide the internal details, or it will be only specify or highlight the services, that is known as the abstraction. So firstly we have to be take a example, that is a car. If we have to be take a example car, and there are the some points in the car, just doing the accelerator, brake, clutch, steering. So if we have to be press the brake, so car stop. So what we do, we have to hide the internal detail how the car is stop. Only just we have to be shown that this is a pedal, that is known as a brake. So that is the property of the abstraction, that will be hide the internal details. और वी कैन से दैट एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उन सबको हाइड करके रखता है, दैट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन. तो हाउ वी कैन बी अचीव? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन डील विद expose the interface to the user and hide the details of the implementation. Means if we have to be hide the implementation detail, just show the services, that is known as the abstraction. और that is the example कि हमने यहाँ पे बात किया, that is brake. If we have to be press the brake, तो car is stop. If we have to be release the brake, तो car is moving. तो means if we have to be move the car in the right direction, so just we move the steering in the right direction, or we move the steering in the left direction. But how it will be actually work, we cannot be defined. We can be hide the details. So this is known as the abstraction. Same here, that is the encapsulation. Encapsulation means that is data hiding. Means we have to be information hiding. Both are the same. Encapsulation क्या करता है? Encapsulation is used for the information hide or to hide the information, while abstraction is used to hide the implementation parts. Means if we have to be take the make a program, so what we have to be do, we have some data and methods. method. तो encapsulation means जो हाइड करता है इंफॉर्मेशन, मीन्स जो भी हमारे वेरिएबल्स डेटा है जो उनको हाइड करके चलता है, दैट इज नोन एज द encapsulation. और जब भी हम एक मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं तो दैट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन. सो encapsulation is used to hide the data, or we can say that it is used for the information
हाइडिंग। और ऑलवेज इनकैप्सुलेशन ग्रुप टुगेदर, क्या ग्रुप करके रखता है, दैट इज डेटा एंड द मेथड्स। Now we have to be take one by one example of the abstraction and the encapsulation. But now if we want to achieve the abstraction, how we can be achieve the abstraction? There are the two types. One is we have using the class and we have using the interface. But when we are using the class, so it must be declared as the abstract. तो जो भी हम एक abstraction को achieve करेंगे और with the help of the class, तो that class must be abstract. We have to be defined in a example here. But if we have to be achieve the abstraction, there are the two types. One is the abstract class, second one is the interface. Now we have to be defined one by one. As we are taking here example एक car. Suppose we have a car, ठीक है ना, और cars में क्या कॉमन है कि हम लेके चला है कि if we are talking about a car, number of tires कितने होंगे, 4. और जब भी हम उस कार को स्टार्ट करेंगे तो we can say that वेरिएबल मेरा कौन सा है, नंबर ऑफ टायर्स। और कार की हम ये बात करते हैं तो मेरे टायर्स कितने होंगे, 4 होंगे। अगेन वी हैव क्रिएट ए मेथड दैट इज स्टार्ट, और वहां पे क्या चीज है कि कार जब भी स्टार्ट होती है वो किसके साथ स्टार्ट होती है, दैट इज द की। सेम इसी तरह हमने एक दूसरा क्रिएट किया एक बाइक, अब उसमें भी हमने सेम वेरिएबल्स लिया, वेरिएबल्स आर द सेम बट वैल्यू इज द डिफरेंट। हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइक, तो नंबर ऑफ टायर इज 2. Or again we have taking a method name set that is same, that is start, or here ki bike start with the kick. So in this example we have taking the two, one is car, second one is the bike, but number of tire and start method both are the same, either it is car or it is bike. What is change? Its value is the change ki number of tires in a car, that is 4. Start, it will be indicate ki car start with the key. Second, if we talk about the bike, number of tires is 2 and start, it will be start with the kick. So when we have to be achieve the abstraction, so basically we have create a class that is named as the vehicles, and there are the two main things. One is number of tire and second one is the start. So we have to be declare one variable that is number of tire and second one is the start method. Either if we have to be talk about the car, तो number of tire will be equal to 4, and when we have to be start method, किस मेथड को कॉल कर रहे हैं हम, कार के मेथड को, तो मुझे क्या प्रिंट मिलना चाहिए कि कार स्टार्ट विद द की। व्हेन वी हैव टू बी एक्सेस बाइक, तो नंबर ऑफ टायर विल बी 2 एंड स्टार्ट व्हेन कॉल इट स्टार्ट मेथड, तो बाइक स्टार्ट विद द किक। व्हाट इज दिस मीन्स, हमारे पास एक व्हीकल क्लास है, किस नाम का, व्हीकल की क्लास का है। अब हम उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे दो चीजें, एक नंबर ऑफ टायर एंड सेकंड द स्टार्ट मेथड। जब मेरी क्लास कार एक्सेस करेगी किसको, व्हीकल्स को, तो इट विल बी प्रिंट नंबर ऑफ टायर विल बी इक्वल टू 4 एंड स्टार्ट में क्या प्रिंट करेगा कि कार स्टार्ट विद द की। व्हेन बाइक क्लास एक्सेस द व्हीकल, तो इट विल नंबर ऑफ टायर विल बी प्रिंट 2 एंड स्टार्ट इट विल बी प्रिंट that is keep bike start with the kick. How it will be achieved? Now अभी किया कि हमें क्या बनाना है, एक क्लास करना है। तो in this example firstly we have to be create a class that is named as the vehicle, और इस vehicle के अंदर हमारे पास क्या होंगे, दो चीजें, number of tires and the method that is start. तो we have to be define here tire, और tire किस टाइप का है, integer type. Second one we have to be a method that is start, और return type is void. Means कि now we are using the first one कि we have to be achieve the abstraction by using the class. और what is the mandatory कि when we are using this class, तो it must be abstract. ये क्लास मेरा क्या होना चाहिए, abstract होना चाहिए। अब वो abstract कैसे होगा कि जितने भी सारे methods हैं, अब अगर इस क्लास के अंदर मैंने बहुत सारे methods लिए हैं, various method है, तो at least one method must be abstract. तो इसके अंदर जितने भी अगर एक से ज्यादा मेथड्स हैं, तो एक मेथड्स हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, मींस जैसे ही हमने यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको एक मेथड को डिक्लेयर किया एज ए एब्स्ट्रैक्ट, तो इट मींस क्या चीज है कि वी कैन नॉट बी डिफाइन द इंप्लीमेंटेशन पार्ट हेयर।
Clear? When we have to be declare this method as a abstract, so means we cannot be define the implementation part. So we cannot be make the body of method. That method must be abstract. कि अगर हमने किसी एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है तो हम उसको इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. कहां यूज करेंगे? इन द अनदर क्लासेस. तो ओके, व्हेन वन मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट तो इट मस्ट बी कंपल्सरी, तो दैट क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट. एंड विद इन ए क्लास दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, if it has more than one method, all are the abstract, or at least one method should be abstract. Now we have another class. We create a class that is car. Extend किसको कर रहा है? That is the vehicle. It will be extend the vehicle. Now it call the start method, means कि when we have to be declare a method as a abstract in the subclass car that extend the class, we can be implement this method in this class. कि इस क्लास के अंदर अब मुझे क्या करना है? इस स्टार्ट मेथड को इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है. तो मैंने यहाँ पे कॉल किया दैट इज void start एंड वी हैव टू बी प्रिंट कि system.out.println car start with key. Okay, again this we have used another class that is bike. Again it will be extend. किसको एक्सटेंड कर रहा है? व्हीकल्स को. तो अगेन वी हैव टू बी डिफाइन द मेथड स्टार्ट, मींस कि इन सब क्लास के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी मेरे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं हम उसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इन द सब क्लास कार एंड द बाइक. तो वी आर यूजिंग द स्टार्ट मेथड एंड वी हैव टू बी प्रिंट system.out.println कार स्टार्ट विथ किक. तो जब भी ये क्लास कॉल होगा कि अगर मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये मुझे कौन सा स्टार्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा? स्टार्ट. फर्स्टली क्या पूछेगा? नंबर ऑफ टायर. नंबर ऑफ टायर्स हम कितना डालेंगे? 4. और जैसे मैं कार का ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करता हूं तो ये अब किसको कॉल करेगा? स्टार्ट को करेगा. और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाता हूं? बाइक का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये कौन से स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा? जो कि मेरा इस बाइक क्लास के अंदर यहाँ पे यूज हो रहा है. तो ये इस बाइक क्लास के मेथड्स को वो यहाँ पे कॉल करेगा. Clear? But it is mandatory कि when we have to be making a class as a abstract, तो at least one method should be abstract. It may be all the methods should be abstract, but at least one method should be the abstract. Now, second one is the encapsulation. Second one is the encapsulation. In the encapsulation, what we do? It is a mechanism that bind code and data together. अभी हमने यहाँ पे किया था कि जब भी हम यहाँ पे encapsulation की बात कर रहे हैं तो हमेशा वो क्या करेगा? मेरे पास जो कोड होगा जिसके हम बात करते हैं डेटा, और जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं मेथड्स हैं, हमेशा इन सबको क्या यूज करके चलेगा? एक साथ बाइंड करके चलेगा. तो इसलिए वो यहाँ पे बोलता है कि encapsulation is the mechanism that bind code and data together, which is safe from the outside, or it is a mechanism to wrap the data. Data means variables, and code of the data. Code of the data means the method together in a single unit. And how we can be achieve? कि suppose we have to create a class. अब इस क्लास के अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया? वेरिएबल. सपोज वी हैव टू बी डिक्लेयर ए वेरिएबल इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड इंटीजर b इक्वल टू 10. एंड व्हाट वी द यूज? मेथड. सपोज वी हैव टू क्रिएट ए मेथड ऐड एंड दैट इज रिटर्न टाइप इज सपोज void. और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस मेथड में क्या कर रहे हैं? a प्लस बी यूज कर रहे हैं. तो मींस कि अभी जो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो क्या करता है एक साथ कंबाइंड करके करता है किसको? कोड एंड डेटा. तो मेरा कोड कौन सा हो गया? दैट इज द वेरिएबल. और मेरा मेथड्स कौन सा हो गया? दैट इज द ऐड. तो हाउ वी कैन बी when we have a code, how we can be find out कि it is achieve the encapsulation property or not? All the variables that we are use, if we have to be declare it as a private and all the methods are public, then we can say that it is achieve the encapsulation property. जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमें उस वेरिएबल्स को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एज ए प्राइवेट. और जितने भी मेथड्स होंगी वो सारे के सारे क्या होंगे? पब्लिक. तो अगेन रिपीट, अगर किसी भी क्लास के अंदर जितने सारे वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे मेरे क्या है? प्राइवेट हैं. और जो भी मेरा मेथड्स हैं अगर वो सारे के सारे मेरे मेथड्स क्या है? पब्लिक है. तो इट मींस दैट दिस क्लास अचीव द इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी. Now we take the one example. Suppose मेरा हमारे पास क्या एक क्लास है that is a employee.
अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक एम्प्लॉय की आईडी को प्रिंट करना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज द एम्प्लॉय आईडी, और किस टाइप का है, रिटर्न टाइप का, और ये क्या है, वेरिएबल है। अगर इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी अचीव करना है तो वी हैव टू बी डिक्लेयर इट एज ए प्राइवेट। सेकंड वन, वी हैव यूज ए मेथड दैट इज द सेट एम्प्लॉय आईडी। we have a method set employee id and we have a another method that is the get employee id। अभी इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, how it is be work, basic की how we can be achieve the encapsulation। तो here we have the variable that is the employee id and we have the two method that is method 1 and method 2। So if we have to be achieve the encapsulation properties, all the variables must be declared as a private. So we have to be declare it as a private and all the methods we have to be declared as a public. So when we have to be declared all the variables as a private and all the method as a public, so we can be how we can be say that we have to be achieve the encapsulation properties. Again second one, एक चीज यहाँ पे clear कि means जैसे ही हमने किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया प्राइवेट, इसका मतलब क्या चीज है कि इट विल बी लिमिट इन दिस, इसका जो भी मेरा एग्जीक्यूशंस है इस एग्जीक्यूशंस के अंदर ही वो वहां पे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाहर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो दिस इज नोन एज ए डेटा हाइडिंग। मींस व्हेन वी हैव टू बी डिक्लेयर वेरिएबल एज ए प्राइवेट, तो दिस इज नोन एज द डेटा हाइडिंग। कि अब तीनों की बात करें, एब्स्ट्रैक्शन जो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स को लेके चले थे, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग एंड द इनकैप्सुलेशन। ओके, तो यहां पे हमारा क्या चीज है कि जैसे ही हमने एक वेरिएबल को वी हैव टू बी डिक्लेयर ए वेरिएबल एज ए प्राइवेट, तो इट मींस दैट इट इज डेटा हाइडिंग। बट in this, if all the methods are the public, so we can be say that this class employee achieve the encapsulation property. Clear? Now we have to be take the example। हमें करना क्या है कि सपोज अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है किसी भी एक क्लास है हमारी, मुझे सिंपली मैंने एक पब्लिक स्टैटिक एक मेन क्लास बनाया है जिसके अंदर हमारा क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड्स है, और मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है जिसके मुझे क्या करना है, उसका अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर प्रिंट करना है, उसका नेम प्रिंट करना है, उसका ईमेल आईडी प्रिंट करना है, और हाउ मच अमाउंट ही इज रिसीव, ये सब चीजें हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। और किसका यूज करना है, दैट इज एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाया एम्प्लॉय, उसके अंदर क्या लिया, उसकी एक आईडी लिया दैट इज द एम्प्लॉय आईडी, और उस आईडी को मींस इट इज ए वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर किया हमने, दैट इज प्राइवेट। अब इस वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हमारे क्या कहते हैं, दो मेथड यूज करते हैं, सेटल एंड गेट। सेट एंड गेट, तो फर्स्टली हमने क्या किया कि इस एम्प्लॉय आईडी को एक मेथड क्रिएट किया दैट इज सेट एम्प्लॉय आईडी, और उसके अंदर यहां पे डिक्लेयर किया कि जो भी मेरी एम्प्लॉय आईडी होगी वो किस टाइप की होगी, इट मस्ट बी द इंटीजर टाइप। तो इट इज द मेथड, तो वी हैव टू बी डिक्लेयर ए प्राइवेट, और इस ईआईडी की वैल्यू वो किसको दे दे, दैट इज द एम्प्लॉय आईडी। मींस कि यहां पे अगर हमने वाईडी डाला सपोज 220102, तो इट विल बी गोज इनटू द, क्योंकि मेरा मेन वेरिएबल कौन सा है, दैट इज द एम्प्लॉय आईडी। सेम इसी तरह अब इस वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, हमने इनपुट में यहां पे डाल दिया, अब वो क्या करेगा, इस एम्प्लॉय आईडी को क्या करे, गेट करे अनदर, इट इज ए मेथड, तो वी हैव टू बी डिक्लेयर द public। तो when we have to be declare all the variables as the private and the all the methods as the public, we can say that we can be encapsulation properties को हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, और इसने वैल्यू को क्या कर दिया, रिटर्न किया। नाउ हमने क्या किया, एक क्लास बनाई दैट इज कंपनी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब एम्प्लॉय आईडी, इस एम्प्लॉय आईडी का वी हैव टू बी क्रिएट ए रेफरेंस ई विद द हेल्प ऑफ द न्यू एम्प्लॉय आईडी, और सबसे पहले क्या चाहिए उसको, एम्प्लॉय आईडी, सेट एम्प्लॉय आईडी। तो मेथड कॉल किया हमने ई डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी दैट इज 101, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो क्या कर दे, एम्प्लॉय आईडी प्रिंट कर दे, और किसको प्रिंट करे, ई डॉट गेट एलिमेंट आईडी। तो जैसे ये मेरी वैल्यूज गया 101 किसके पास गया, यहाँ पे गया 01 हमने किसको दे दिया, दैट इज स्टोर्ड इन द एम्प्लॉय आईडी। जब रिटर्न गया तो रिटर्न में वो क्या कर रहा है, किस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी के अंदर कितना है हमारा 101। तो वी कैन बी अचीव द एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी।
अनदर एग्जाम्पल, अब हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया अकाउंट्स के नाम का। अब उसके पास कुछ वेरिएबल्स लिया कि जैसे अभी यहाँ पे किया था कि मुझे क्या करना है, उसका अमाउंट प्रिंट करना है, उसका नेम प्रिंट करना है, उसका मेल आईडी प्रिंट करना है। तो हमने एक अकाउंट नंबर लिया और उसको रिटर्न टाइप क्या दे दिया, लॉन्ग। इनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो इसको क्या डिक्लेयर किया, दैट इज द प्राइवेट। अगेन दूसरा वेरिएबल लिया, दैट इज द नेम और ईमेल आईडी। अगेन दो वेरिएबल लिया और वो किस टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के। तो अगेन वी हैव टू बी डिक्लेयर द प्राइवेट, मींस हम यहां पे क्या कर रहे हैं, दैट इज डेटा हाइडिंग। और ये भी मेरा क्या है, दैट इज डेटा हाइडिंग। थर्ड वन, अमाउंट, रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, उसको भी क्या डिक्लेयर किया, प्राइवेट। मींस जितने भी वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर इनकैप्सुलेशन से अचीव करना है तो हमको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्राइवेट। तो ये भी मेरा किसका पार्ट है, डेटा हाइडिंग का। नाउ वी हैव टू बी यूज टू मेथड, वन इज गेटर एंड द सेटर। मेथड्स हैं तो हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेट करे कि क्या चाहिए मुझे, अकाउंट नंबर, और वो अकाउंट नंबर किस टाइप का होगा, लॉन्ग, दैट इज अकाउंट नंबर। और ये मेथड मेरा क्या डिक्लेयर होगा, पब्लिक। सेम इसी तरह दूसरा मेथड लिया हमने, गेट अकाउंट नंबर, वो भी किस टाइप का है, रिटर्न टाइप लॉन्ग, और वो भी किस टाइप का किया, पब्लिक। और वो क्या कर दे, रिटर्न टाइप दिस। सेम इसी तरह हमने क्या किया, अनदर मेथड लिया, सेट नेम, वो नेम प्रिंट करेगा और उसको भी क्या बनाया, दैट इज पब्लिक। इसी तरह उसका गेट नेम किया, वो रिटर्न कर दे। अब क्या चाहिए था, मेल आईडी, तो मेल आईडी भी उसका किया, क्या किया, मेथड। मीन जितने भी सारे हमने यहाँ पे मेथड्स को डिक्लेयर किया हुआ है कि मुझे प्रिंट करना है, सेट और गेट को, एक बार किसको, अकाउंट नंबर के लिए, एक बार किसको, नेम के लिए, नेक्स्ट ईमेल के लिए, और नेक्स्ट इज द अमाउंट के लिए। तो जितने भी सारे मेरे यहाँ पे ये मेथड्स हैं वो सारे के सारे हमने क्या डिक्लेयर किए, दैट इज पब्लिक। तो ये सारे के सारे मेथड्स जब हमने पब्लिक किए, जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं ये हमारे प्राइवेट हुए, तो मींस इट इज द डेटा हाइडिंग। अब इसके अंदर यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि हमने व्हाई वी यूज दिस, देयर आर द टू कीवर्ड्स। अभी मैं इसके डिस्कस कर रहा हूं कि दिस मेरा क्या चीज है। सपोज करो कि मेरा यहाँ पे क्या लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया है कि जब भी पास किया, दैट इज अकाउंट अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे भी क्या है, अकाउंट नंबर स्कोर नम। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं अकाउंट नंबर स्कोर अंडरस्कोर नम इक्वल टू अकाउंट नंबर नम, तो बोथ वेरिएबल नेम आर द सेम। तो कंपाइलर यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूज होगा कि जब ये वैल्यूज इसके अंदर जाएगी, सपोज मैंने अकाउंट नंबर कितना डाल दिया 12545, तो ये वैल्यू किसको स्टोर करे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स क्या है, सेम। तो इसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा मेन वेरिएबल्स है दैट इज दिस डॉट अकाउंट, मींस कि जो ये वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अकाउंट नंबर। और जो भी मेरी ये वैल्यू आएगी ये किसको जाए, कि अगर मैंने दिस डॉट अकाउंट नंबर लिया है तो हमारा जो एक मेन वेरिएबल्स है उसके अंदर ये वैल्यू जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब भी यूज किया तो यहाँ पे भी क्या है, दैट इज दिस डॉट नेम, और यहाँ पे भी क्या है, हर एक के साथ हमने दिस को यूज किया हुआ है। या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको नंबर अलग कर दूं कि जैसे मेल आईडी किया, मैं यहाँ पे मेल आईडी ना लेके क्या डाल दूं, ईमेल आईडी 1, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट इज ईमेल इक्वल टू ईमेल आईडी 1, बोथ आर डिफरेंट। अगर सेम लिया है तो वी हैव यूज द दिस। अब इसको वी हैव टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। देयर आर द टू मेथड, वन इज सुपर एंड वन इज द दिस, so we have to be discussed in the next class. Okay.